welcome all of you. Today we start with the ninth chapter of Social Studies, and that is related to the fundamental rights, about which we had done in standard 8, and here you are going to do about fundamental duties. These two very much, but in short it was done in 8th. And yes, directive principle of state policy was not that much in detail. So here you will see each and every part of it, that is rights, duties, directive principle. You are going to learn it and understand it very much in detail, I would say. But before that, let's see related to this introductory section of this chapter. That is, in the previous chapter, that is in 8th chapter when we already had done about Indian Constitution, preamble, important pillars, and we also had done some important features. Now in this chapter, we are going to learn about the important features of Constitution, and these important features are, as I said just now, fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of state policy. Now first of all, human rights. This you must be knowing very well, because rights everyone love, duties come second as such for human mentality. So let's learn something about these human rights. Let's understand what is it. Now in very simple word, before I start reading over here, human rights I would say are those rights which each one of us, you, me, everyone on the planet, they need it. It's a necessity. Just like food, clothing, shelter, health, education, rights are equally important. They are very necessary if a person has to develop socially, economically, mentally, physically, and in each and every field. A person, in order for development, he needs these rights. It develops his confidence also, and it provides him equality, the same platform with the other people. And these rights also provide no partiality, that is, there will be no discrimination. And if any right is not provided to us, the citizen can go to the court of law. So human rights as such are very important for the development of human being, through whom the country develops. So human rights are those rights which not only gives a person, that is his or her basic existence, that is identity, पहचान. तो राइट्स सिर्फ हमें हमारी पहचान नहीं दे रहे, but it also is an overall development of that person, in which society helps to construct an environment which again helps him or her to grow. मतलब ह्यूमन राइट्स सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे हर एक सिटीज़न का जैसे हो रहा है ड्यू टू दिस राइट्स, तो नेचुरली एक अच्छी सोसाइटी बनेगी. अब सारे लोगों को अपनी राइट्स मिल रही है, सारे लोग डेवलप हो रहे हैं. टेक वन स्मॉल सोसाइटी, से अ पर्टिकुलर एरिया, से योर ओन एरिया, मे बी बोडकदे और मे बी प्रहलाद नगर, मे बी you can say satellite area, it could be any small region you take, यहाँ पे हर एक आदमी को अपनी राइट्स मिल रही है, हर एक आदमी डेवलप हो रहा है, एजुकेटेड है, तो नेचुरली those people in that particular area will provide or they will be successful in developing their own society. और ऐसी पढ़ी लिखी और डेवलप सोसाइटी नेचुरली एक ऐसा एटमॉस्फेयर देगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जहाँ पे और लोग डेवलप हो रहे हैं, और धीरे 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 फिर पूरा एक सिटी डेवलप हो रहा है, एक स्टेट डेवलप हो रहा है, एंड देन ऑन अ लार्जर स्केल कंट्री इटसेल्फ डेवलपमेंट दिखा रही है वेरी स्पीडीली. सो राइट्स आर द रूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. So that's very important. In every democratic country, citizens are conferred, means granted, given basic rights. Now a person will never be discriminated on the basis of caste, color, creed, etc. He can experience the basic rights
जैसे तुम्हें जो राइट्स मिल रही है वो मुझे भी मिल रही है, एंड तो हर एक इंडियन सिटीजन को सेम राइट्स. द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन एज वेल. मतलब हर एक इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट श्योरिटी दे रही है, उसका स्टेट, उसकी सोसाइटी श्योरिटी दे रही है दैट डू नॉट वरी, योर राइट्स विल बी गिवन, योर राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड, and you can develop your way in a better way without any discrimination, I would say. The person by his birth gets all these rights, which are his basic rights, which are called human rights. Now next, United Nations General Assembly has declared human rights on 10 December 48 and 10 December celebrated as Human Rights Day. So these are some of your objectives also, along with you will have to learn. तो यूएन की जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स को किस दिन डिक्लेयर किया? दैट वाज 10 दिसंबर 1948. और 10 दिसंबर thus is celebrated also as Human Rights Day from the world level announcement, मतलब कि global announcement of human rights. Certain basic and important human rights are added in the Constitution of India. तो अब जब पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंसमेंट हुई अबाउट द ह्यूमन राइट्स, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऐड हुए, एंड देयरबाय दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन अ वेरी ऑनरेबल वे, डिग्निफाइड मतलब रिस्पेक्टेबल वे. तो इन राइट्स को हम रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं. दे आर प्रोवाइडेड टू अस, दे आर मेंशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. नाउ those human rights which are included by Constitution of India are called fundamental rights. तो यूएन ने जो हमें राइट्स दिए वो थे ह्यूमन राइट्स. फिर 10 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ ह्यूमन राइट्स डे. अब वही ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे जाके वही डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग कंट्री को डेवलप करेंगे. तो वो सारे ह्यूमन राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए. अब ये ह्यूमन राइट्स को हमने नाम क्या दिया? फंडामेंटल राइट्स. और ये तो डिटेल में 8th में किया ही था. थोड़ा बहुत और पॉइंट्स ऐड हुए हैं इन योर 9th स्टैंडर्ड दिस चैप्टर. नाउ दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम मतलब दे अनाउंस और दे टेल द ह्यूमन बींग्स दैट यू कैन लिव इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. तो ह्यूमन राइट्स जब हमें मिलती है तो होता क्या है कि एक ह्यूमन बींग को राइट मिलती है कि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, वो उसे चाहे इतना वो एजुकेशन ले सकता है, ही कैन गेट एंट्री इनटू द जॉब एज पर हिज डिग्री एंड ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हिज कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड रिलीजन. ये कोई मायने नहीं रखता. ये कभी भी हम देखते नहीं कि ये कौन सी जाति का है while providing the job to a person. It's his education or her education that matters. तो एक आदमी जब डेवलप होगा विदाउट एनी पार्शियलिटी एंड ऑल, तो नेचुरली वो ह्यूमन बीइंग में कॉन्फिडेंस पैदा होता है. एंड ह्यूमन राइट्स ऑल्सो से दैट ह्यूमन बीइंग कैन नाउ लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, दैट इज डिग्निफाइड वे ही कैन लिव. नाउ फॉर एग्जिस्टिंग और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, व्हाट डू वी नीड? बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. ये सब तो मिल रहा है, लेकिन अगर राइट्स ही ना मिले तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी ज़ीरो, इट्स ऑफ नो यूज़. तो ये सारी नेसेसिटीज़ भी उसे मिलनी चाहिए इन अ वेरी ऑनरेबल वे, रिस्पेक्टफुल वे. वही तो उसकी राइट है. नाउ डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज ऑल इट्स सिटीजन टू एंजॉय इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीफेसेटेड? मतलब in all the regions, in all the fields, I would say, in all the areas of life, a person can enjoy all the rights. The state guarantees such a conducive environment. Conducive मतलब a very possible environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system. अब ऐसी कौन सी चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की है जो बता रही है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो नेचुरली दिस फंडामेंटल राइट्स. और इस राइट्स को गवर्नमेंट कहती है कि वी विल प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी राइट्स तुम्हें मिलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है हमारी कंट्री में. पॉसिबिलिटी खड़ी की है हमारी गवर्नमेंट ने बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स.
तो ये आइडेंटिटी है, ये एक सही पहचान है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि राइस तो सबको पसंद है, ये चाहिए वो चाहिए, इन योर हाउस ऑल्सो नेचुरली। जस्ट हैव अ लुक और जस्ट थिंक ओवर आफ्टर दिस लेक्चर यू गो थ्रू। तो जैसे ही वीडियो लेक्चर तुम सुन लो, देख लो, तो बैठ के 2 मिनट के लिए सोचना कि कितनी चीज़ें तुम्हें दी गई है इन योर फैमिली बाय योर पेरेंट्स, बाय योर एल्डर्स, और फिर भी कितनी चीज़ें तुम मांगते रहते हो। एंड देन व्हाट डू यू से, ये दिस थिंग्स आई वांट, ये तो हमें मिलना ही चाहिए। इनडायरेक्टली यू मीन टू से दैट्स योर राइट, बट एट सर्टन एज योर पेरेंट्स नो दैट सम थिंग्स आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड टू यू। तो वो उस एज की तुम्हारी राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री लेवल पे एक राइट तुम्हें नहीं मिलेगी टू ऑल द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड दैट इज वोटिंग राइट। तो 18 ईयर्स के बिलो के बच्चे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल केस नहीं करेंगे दैट ओ इट्स माई राइट टू वोट, आई एम एन इंडियन सिटीजन। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक रूल भी साथ साथ बनाया है कि राइट सब मिलेगी एज रिटन ओवर हियर, बट सम राइट्स आर गिवन व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज। तो उसी तरह से तुम्हारे घर में भी कई राइट्स ऐसी है जो तुम्हें 5 साल की उम्र में मिल गई, लाइक वॉकिंग ऑन योर फीट ऑन योर सेल्फ, गोइंग टू स्कूल, मे बी प्ले ग्रुप या नर्सरी। लेकिन बच्चा पैदा होते ही अगर उसे वो जाना चाहे टू द स्कूल, यस, यहाँ पे तो हंसी आएगी, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही नहीं कहेगा ओ इट्स माय राइट टू गो टू स्कूल एंड ऑल। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे माँ बाप समझ के उसे एक पर्टिकुलर एज में स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। फिर गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं कि एक पर्टिकुलर एज में ही एंट्री मिलनी चाहिए। जैसे 4 साल के बच्चे को अगर जूनियर केजी में जाना है तो उसकी मम्मी 2 साल में या 3 साल में ये नहीं कहेगी भाई इसको जूनियर में डाल दो, ये तो मेरा हक है टू गेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन I could educate my child and it's my right that my child should get the education. It's my child right also. बहुत सारी राइट्स है जो एज के हिसाब से मिलेगी। तो राइट्स ऑफ कोर्स, I told you just have a look at yourself. You are provided lakhs of things by your parents. मैं तो कहूँगी ट्यूशन itself is provided to you which is a luxury. It is not a necessity. जैसे अभी हमने देखा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। अब एजुकेशन तो माँ बाप दिलवा ही देते हैं तुम्हें बेस्ट स्कूल में। ट्यूशन इज अ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइडेड टू यू, सो आई वुड से दैट इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी प्रोवाइडेड। मतलब ये भी तो माँ बाप तुम्हें दे रहे इतनी सारी चीज़ें, जो मांगो पढ़ाई के लिए बेचारे माँ बाप ला के इतने सारे बुक्स दे देंगे तुम्हें, एंड डाइजेस्ट एंड लॉट मैनी न्यू पेन्स एंड लॉट मैनी थिंग्स। अब उसके इक्वल टू तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वी नो मोस्ट ऑफ यू, आई वुड से नॉट ऑल, मैनी ऑफ यू, नॉट इवन मोस्ट, मैनी ऑफ यू आर नॉट स्टडिंग इक्वल टू वॉट इज प्रोवाइडेड टू देम। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि राइट्स मांग रहे हैं, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हो। It could be you, it could be me also in some of my areas where I say I want this and I want that, और शायद 100 में 99 ड्यूटी में अपनी परफॉर्म कर रही हूँ, मे बी 1 ड्यूटी कोई हिंड्रेंस आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए एंड आई couldn't fulfill that. But here we are talking about as you as a child where you are yet too small. तो अभी इतने भी छोटे नहीं हो कि ना समझ पाओ, तो इतना तो समझ ही लो कि अगर राइट्स के लिए दौड़ रहे हो तो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर लो। घर में सब कुछ मांग रहे हो माँ बाप के पास, तो पहले उनको सपोर्ट भी कर लिया करो। और सपोर्ट में यही है कि तुम्हारी मम्मी यही चाहेगी कि तुम पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ। हाँ, 40 वाला बच्चा 90 पे तो जम करेगा नहीं 1 साल में, बट एटलीस्ट पेरेंट्स वांट दैट मेरा 40-50 वाला बच्चा एटलीस्ट 10% बढ़ा के दिखाए हमें, अच्छे से पढ़ाई करे, बेसिक क्लियर करे। आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू बेसिक्स।
लाइक योर मैथ्स एंड ग्रामर, इसके बेसिक्स अगर तुम्हारे परफेक्ट हैं, राइट, you can enter any field in future and you can reach the stars, you can achieve everything in your life, of course goody things in your life, you can progress a lot, you can develop a lot, लेकिन 90% आ रहे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, then that person I think would not be able to lead to a success initially, maybe later on. So once again back to the topic, rights and duties. Have a look at yourself, that what are you asking for, whether it is proper or not. right करके सारी चीज़ हम नहीं मांग सकते, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत समझ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं. अब इसके बाहर के भी राइट्स मांगना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, राइट. सो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural education right, right to constitutional remedies. अब ये सोच समझ के, मतलब काफ़ी सोचा इतने सारे लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठे थे, और जो 166 मीटिंग्स चली थी उनकी फॉर मोर देन 2 years, 11 months and 18 days I would say it was actually. तो राइट टू इक्वालिटी, यस, सारे लोगों को इक्वालिटी मिल रही है इन फ्रंट ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. राइट टू फ्रीडम, मतलब हर एक को फ्रीडम मिल रही है टू फॉलो योर ओन रिलीजन, टू पिक अप द एजुकेशन ऑफ योर चॉइस, पिक अप द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस. नोबडी कुड हैव फोर्स्ड मी टू मूव टू अ पर्टिकुलर फील्ड for my education and to pick up the profession. For example, yes, there was not a force, but there was a bit of, I would say, family members had insisted me. Let me tell you a small, very small incident over here, which of my college life. That is when in 10th in Bombay we have 11th से ही college में entry होती है. So in 10th I scored, you would say today what you are scoring, 90 up. That is what I scored in 10th. And I got a very first entry into the Nursi Monji College, that is NM College at Vilepale, Juhu. And that was because of my English literature and maths and statistics that I scored distinction, the maximum marks about 85-90. तो एक ईजी एंट्री हो गई थी मेरी. इट वॉज द फर्स्ट एंट्री दैट वॉज गिवन टू मी इन दैट कॉलेज, एंड दैट मोमेंट आई इवन रिमेंबर टुडे. इट स्टिल मेक्स मी फील वेरी प्राउड ऑफ इट. सो अब 11th-12th किया, अगेन 12th बोर्ड डिस्टिंक्शन, देन देयर वर कॉलेज एग्जाम्स. 12th में येस, दो इट वॉज कॉलेज बट द बोर्ड हैंडल करती थी as we have over here, but then college university exam from first year onwards. Now first, second, third year again throughout good, but when I completed and I did 2 years together somewhere, maybe my mother had been into this subject कि भाई first second साथ में किया या नर्स जूनियर सीनियर साथ में करवाया, तो somewhere at the age of 18 कंप्लीट पे मैंने फर्स्ट डिग्री आई गॉट, राइट, विच यूजुअली वी गेट एट द एज ऑफ 20. तो 18 कंप्लीट होते ही जैसे डिग्री मिली, देन आई वॉज इंसिस्टेड बाय द फैमिली मेम्बर्स टू मूव अहेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. येस, आई वेंट टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी, आई टुक द फॉर्म, आई फिल्ड इट अप, and yeah, I took the form. I was coming by local train, I was coming home, and then that big long journey from Churchgate to Kandivali of 45 to 50 minutes by local train. I was just thinking over and I was looking at that form, that whether I should fill it up or not, because my dream was, I loved to be a teacher, and even today it continues. So I didn't want to sit in that बंद कमरे में जहाँ पे किसी को, मैं हार्डली किसी को मिलूँ, और मिलूँ तो भी बड़े लोगों को मिलूँ, जहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही हमें. एक्चुअली इट वॉज अ ड्रीम दैट आई वॉन्टेड टू बी विद चिल्ड्रन, आई वॉन्टेड टू टीच देम, आई वॉन्टेड टू जस्ट एन्जॉय विद देम, गेट एनर्जी फ्रॉम देम.
and enjoy my profession. That is more important. So then I just folded into a very small piece that full my form, put it in my bag, and I told my parents that I'm not going to go for chartered accountancy. It's very simple. I didn't want to, and I wanted to enter into the profession of teaching, and that is what I did later on. Yes, but on a large scale, I would not say it's a large scale, but on a better scale, I would say. That is what I got big exposure in Ahmedabad itself when I came over here few years back. So thanks over here to all my Ahmedabad children and parents, of course, first of all parents, and then you. So here you can say that nobody will force you. ये तुम्हारी राइट है कि तुम कोई भी प्रोफेशन पिकअप करो. हाँ, जब तक छोटे हो, जब तक कि तुम अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ना कर लो, टिल देन यू नीड अ सपोर्टिव हैंड ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. But then later on at the age of 19-20 you start deciding about your future goals. अभी छोटे goals हैं 80-90% वाले बच्चों वाले goals. At the age of 18-19-20 now you will start deciding, that is then you will start deciding कि अब कौन सी line pick up करनी है, where you are going to enjoy. तो तब तुम्हें कोई stop नहीं करेगा. As nobody stopped me कि भाई तुम टीचर नहीं बन सकती, तुम हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना है. Government didn't stop me. Government didn't even force me to enter into a particular field. तो एक total equality मिलती है to follow your passion, where you can develop more, I would say, because I believe when you enter into a profession which is passion first and profession second, 100% you are going to enjoy your profession. When you come back in the evening from your workplace, you are not tired. You are on the top of the world daily. You feel very good, very energetic, and of course that is because you love your profession. It could be any profession. So this is my experience that I'm just sharing with you. I don't know about the experiences of the other people, but I believe that enter that profession which is your passion rather than entering into that profession which is being just loaded on you. Or maybe the society wants कि हाँ भाई अरे तुम तो बहुत होशियार हो 90 वाली, तो तुम साइंस नहीं ले रही, and there comes that big load of science. My God, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, 90 और मैं आर्ट्स ले रही हूँ या ले रहा हूँ या मैं कॉमर्स की तरफ जा रहा हूँ. This should not be there. You love commerce, go for it. You love to become a teacher, go for it. You love to become a classical dancer. Yes, I always opt for classical dancing. So classical dancing, go for it. But pick up that field after 12th, I insist. After 12th, where it has a value on the world, in the world platform, right? On the world platform से देखो, इंडिया के प्लेटफॉर्म से मत देखो, वर्ल्ड ओवर से देखो कि तुम जिस तरफ जा रहे हो, जिस डिग्री को पिकअप करने जा रहे हो, उसकी वैल्यू वर्ल्ड में क्या है. देन आई वुड से दैट पैशन इक्वल टू प्रोफेशन दी बेस्ट. लेकिन अगर तुम कहो मेरा पैशन है हिप हॉप डांस एंड वेस्टर्न डांसिंग और बस टाइम पास कुछ खेल लो यहाँ वहाँ, तो आई वुड से डियर लेट इट बी योर साइड पैशन. Then I would say yes, at the same time I give 100%, 1000% importance to education. कि education तो बहुत बहुत ज़रूरी है. Otherwise after some years you will be standing at such a place कि तुम्हें लगेगा oh God मुझे तो ये राइट मिल ही नहीं रही. भैया तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो तो राइट कहाँ से मिलेगी. एक अच्छी सी पोस्ट तुम्हें चाहिए कोई कंपनी में, लेकिन पढ़ाई यहाँ तक की है. Naturally here there is nothing like right getting and all because you will get equality everything. but अगर काम ढूंढने जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उतनी एजुकेशन चाहिए. तो yes, education is utmost important for everyone. So back to the topic, right to equality. equality before law तो तुम्हें मिलेगा ही, और ये जो हमने कहा बिना कास्ट कलर क्रीड हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वालिटी मिलती रहेगी. And this fundamental right is very important, is a base of all the rights, that is foundation.
एंड प्रिविलेजेस मतलब एडवांटेज विच इज़ गारंटीड टू ऑल द इंडियन सिटीजन। ये एक बहुत स्पेशल राइट है जो हर एक इंडियन सिटीजन को गारंटी से मिलेगी। इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दस इट इज़ वेरी कंपल्सरी, imperative, you could say crucial, very important that every Indian citizen has easy access मतलब they can attain, they can get the facility or the services of the court। तो हर एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंडियन सिटीजन इजीली से कोर्ट तक पहुंच सके अगर उसे कोई राइट नहीं मिल रही है तो, टू एक्सरसाइज हिज और राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होगी किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज एट्सेट्रा। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल फ्रॉम प्यून टू पीएम। इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ दे आर ट्रीटेड इक्वली and are supposed, that is bound, to go to the court of law. However, president governors have some extra benefits over here. So learn this, right? President और governor को extra privileges मिलती है, थोड़ी सी extra advantage, yeah, right? And in each and every circumstance, law should exist equally. कोई भी circumstance हो हमारी country में, हर एक को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, इक्वालिटी दिखानी चाहिए सब सिटीजन की तरफ। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं ऑन एनी बेसिस टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास। वो हाई कास्ट का है या बहुत पैसे वाला है तो चलो उसकी तरफ थोड़ी फेवरेटिज्म दिखा दो, मतलब थोड़ी पार्शियलिटी कर लेते हैं। नो, इट शुड नॉट बी दैट। Every law should be equally disseminated. Disseminated मतलब distributed, equally provided. I would say right word is provided over here, क्योंकि disseminated का वो मीनिंग कहीं और भी हम सेट कर सकते हैं, but here every law should be equally provided to all the Indian citizen. Every person shall have equal entry, that is admittance, to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads, lakes and use of public wells, bathing ghats। मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल एंट्री है टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। सी योर वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस। अगर ये प्राइवेट प्लेस है तो हाँ वहाँ से ओनर की मर्जी होगी कि भाई उसको एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। Here we talk about the public place. However, state has a right to make a special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally BC और SC और ST। मतलब हर एक स्टेट को ये राइट है कि वो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट तो 6 फंडामेंटल राइट्स दे दी हमें, अब हर एक स्टेट तो कंट्री की तरफ से राइट्स इक्वल टू ऑल इंडियन सिटीजन। अब आ जाओ हर एक स्टेट की तरफ, तो हर एक स्टेट अपने अपने सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं जो शायद दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट ना दे। फॉर एग्जाम्पल BRTS हमारे यहाँ है एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो महाराष्ट्र के सिटीजन फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र में जो मिला है या बॉम्बे में जो मिल रहा है वो अहमदाबाद के लोग गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज these are some extra benefits that each state government is providing as per their own wish for the development of their own state and state citizen। तो हर एक स्टेट कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर सकती है, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन। फिर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है लाइक बैकवर्ड क्लास, स्केड्यूल कास्ट मतलब जो हम कहते हैं हरिजन, स्केड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासी, ट्राइबल क्लास, हर एक स्टेट के ट्राइब्स होते हैं, राइट, आदिवासीज। एंड दैट येस इन 10th इज इन अ बिट इन डिटेल। तो यहाँ पे तो आई थिंक सो समझ में आ गया है तुम्हें व्हाट इज बैकवर्ड क्लास, SC ST। तो ये एजुकेशनली और सोशली थोड़े बैकवर्ड होते हैं तो उनको, बट दे आर इक्वल इंडियन सिटीजन, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कंट्री लेवल से तो कर ही रही है। हर एक स्टेट भी अपने अपने लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एज आई टोल्ड यू। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज, वंस अगेन इक्वल एंट्री एट पब्लिक प्लेसेस,
equality in respect of any government services and higher education under the state government. Right? Private we are not talking. We are 100% talking about public place free entry, equality, government service में equality, all universities, higher education which are under state government, equality. In matters of state public services, equal opportunities have to be offered to all the citizens. However, state is given permission to make decision regarding the required qualification for said services. तो फिर स्टेट पब्लिक सर्विस भी हर एक को इक्वालिटी दिखा रही है एंड हर एक स्टेट को परमिशन मिली है कि वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं कि भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, दैट स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड. एंड एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड. अब यहाँ पे आ गई इक्वालिटी, मतलब कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, इट इज़ एबॉलिश्ड. एंड इस प्रैक्टिस ऑफ इन एनी फॉर्म इज नॉट अलाउड, इट इज़ पनिशेबल. ये क्राइम है, पनिशेबल क्राइम है. टाइटल्स एंड एपिथेट, एपिथेट मतलब एडजेक्टिव्स एक्चुअली. तो हम एडजेक्टिव्स लगाते थे पुराने ज़माने में, राय बहादुर, सर, दीवान जी. तो ये दूसरे लोग जब वहाँ पे हाजिर रहते थे तो जिनको सलाम मारते थे, बे राय बहादुर, दीवान जी, या नमस्ते झुक झुक के सलाम मारना, सर जी एंड ऑल, तो एक बहुत बुरी फीलिंग क्रिएट करवाती थी बाकी के लोगों में. राइट, दैट व्हाई दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज सो वेरी ग्रेट एंड ऑल. तो ये एडजेक्टिव्स हटा दिए गवर्नमेंट ने. राइट, तो टाइटल्स एंड एडजेक्टिव्स और एपिथेट विच क्रिएट very artificial discrimination is removed now. Adjectives used before names like Sir, Divanji, Rai Bahadur are removed. After independence, government in order to felicitate some special contribution, लोगों को respect देने के लिए, honor देने के लिए, उन्होंने जो एक बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है लोगों ने, like defense field and army, navy, etc. तो यहाँ पे उनको फिर अवार्ड दिए जाते हैं, लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ये हम दे सकते हैं. लेकिन दिस थिंग्स आर रिमूव्ड नाउ. दे आर अवॉर्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज. एडजेक्टिव लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल एंड आर एडेड बिफोर नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. अब यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी तुम कहो मुझे तो जनरल नहीं बुलाया गया, मुझे मार्शल नहीं बुलाया गया, दैट्स रॉन्ग. ये अलाउड है, ये एक पर्टिकुलर मिलिट्री सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं. तो यहाँ पे हमारी राइट टू इक्वालिटी वायलेट नहीं हो रही. एम ऑफ दिस राइट इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी. अब ये राइट टू इक्वालिटी क्यों मिल रही है? ताकि एक इक्वल सोसाइटी डेवलप हो, हर एक आदमी डेवलप हो, एंड thereby establish the rule of law in India. To provide specific services to different types of groups or classes, there can be different types of provisions under law. For example, अब देखो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए या ग्रुप्स या क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं सम डिफरेंट लॉज फॉर एडवोकेट्स, दैट इज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, विमेन, चिल्ड्रन, दैट इज जुवेनिल, मतलब चिल्ड्रन. Principle of equal pay for equal work is also part of this article. सेम काम करने पे सेम पे मिलना चाहिए. हमें कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को बीच में नहीं लाना है. एंड नेक्स्ट टाइम वी मूव अहेड विद दिस राइट टू फ्रीडम. टिल देन रिवाइज and we meet soon in the next lecture from Right to Freedom. So take care, be safe, be with your family, enjoy and study a lot, work hard and take care. Thank you so much.